Hello dear students, here we are beginning with sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP. So just see question number 1. The sum of first 6 terms of an AP. By sum of first n terms that you know Sn equals to what? N by 2, 2a plus n minus 1 into d. This you have studied earlier. ठीक है, Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d in the last term. So the sum of first 6 terms, of an AP is 42. Sum of first 6 terms of an AP is 42, and the ratio of its 10th term to the 30th term, is 1:3. Ratio किसका given है? 10th term का और 30th term का. It is 1:3. Calculate the first and 30th term of the AP. Okay, so we just let A is the first term and D is the common difference as usual. तो 10th term क्या होगा? A plus 10 minus 1D या A plus 9D. 30th term A plus 29D. This you know, T10 equals to A plus 9D, T30 equals to A plus 29D. But the ratio of it, मतलब 10th term और 30th term का जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है? 1:3. तो T10 अपॉन T30 इक्वल्स टू 1/3. 10th A plus 9D, T30 A plus 29D, and that is equal to 1/3. Now just cross multiply them. 3A plus 27D, A plus 29D. Simplify them. 2A equals to 9D by 3A minus A and 29D minus 27D. To 2A equals to 2D, A equals to D. We got the relation. A equals to D. Now what to do? क्या बोल रहे हैं वो? 6 terms. Sum of first 6 terms is 42. Sum of first 6 terms, तो Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1d. Sum of first 6 terms as 6 equals to 6 by 2, 2a plus 6 minus 1 into d. Now just see, it is what? 3. तो 2a plus 5d, 2a plus 5d, d equals to a. d equals to क्या है? a के इक्वल है ना, this we know. So रख दीजिए वैल्यू 7 है तो 3 7 जा 21 है. 21 is what? S6. ठीक है, sum of first 6 terms. एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 42 के इक्वल है, तो 21 हमारा किसके इक्वल हो गया? 42 के. देन ए इक्वल्स टू 2. 21 मतलब अपॉन में जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 2, तो डी इक्वल्स टू व्हाट? 2. ए और डी इक्वल है ना, ए इक्वल्स टू डी. इट इज ए इक्वल्स टू डी, तो ए इज 2, देन डी इज ऑल्सो 2. नाउ व्हाट टू डू? वी नीड टू फाइंड 13th टर्म. तो T13 ए प्लस 12D, ए प्लस 12D, ए 2 हो गया, 12 ये डी फिर 2 हो गया, तो ये 24 प्लस 2 एंड दैट इज 26. तो T13 हमारा कितना हो गया? 26. Just see the next question. The sum of first 8 terms of an AP is 100. The sum of first 8 terms of an AP is 100, and the sum of its first 19 term is 551. Find the AP. AP find करनी है. Usually A is the first term, D is the common difference. अब Sn हमें पता ही है, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn कितना होता है? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So now just see, sum of first 8 terms of an AP is 100. तो first 8 terms, 8 by 2, 2a plus 7d. 8 terms ना, तो 8 minus 1 यानी 7d. 8 by 2, 2a plus 8, 2a plus 7d. S8, 4, 2a plus 7d. S19, sum of first 19 terms is 551. तो S19, 19 by 2, 2a plus 18d, 2 से डिवाइड कर दिए, a plus 9d. तो जस्ट सी, S8 कितना है? 100 है. S19 कितना है? 551 मतलब 551. तो जस्ट सी, S8 4, 2a plus 7d, 100. इट इज 2a plus 7d equals to 25. 4 से डिवाइड कर दीजिए. इट इज 19 a plus 9d 551. S19 551 है ना, तो इट इज इक्वल टू a plus 9d equals to 29. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए. तो पहले क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a plus 18d और ये 58. साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो क्या आ गया? 11d minus 33, d equals to 3. जब d 3 आ गया तो a plus 9d 29 था ना, तो a plus 29 minus 27, a2 आ गया. d3 a2, d3 a2, तो t1 हमारा 2 हो गया, a2 तो t1 2. t2 कितना? a plus d, that is 2 plus 3 which is equal to 5. t3 a plus 2d, तो 2 plus 2 into 3 6, 2 8 हो गया. तो AP कितनी आ गई? 2 5 8. यही तो फाइंड करना था, AP फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था. तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया, AP हो जाएगी 2 5 8 और D ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगे. ओके, जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
In an AP, the sum of first n terms, 3n square by 2 plus 5n by 2. The sum of first n terms 3n square by 2 plus 5n by 2. ठीक, हमसे क्या पूछ रहे हैं? What is asked? 25th टर्म फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड 25th टर्म. यहाँ सम गिवन है 25th टर्म. अब एक बात ध्यान समझिए, Sn तो गिवन है. Sn इज व्हाट? 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2. नाउ जस्ट सी, T1 किसके इक्वल है? S1 के. सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स भाई पहला ही टर्म तो होगा, तो वो अपने आप मतलब S1 T1 के इक्वल है. S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो T2 कितना होगा? S2 माइनस T1, और T1 क्या है? S1. तो S2 माइनस S1 किसके इक्वल हो गया? T2 के. S3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T3 कितना हो जाएगा? S3 से T1 प्लस T2 हटा दें, S3 माइनस T1 प्लस T2, तो ये किसके इक्वल हो गया? S2 के. T1 प्लस T2 S2 ही तो हुआ ना, S3 माइनस S2. तो जस्ट सी, S1 हमारा कितना हो जाएगा? Sn गिवन है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n. Sn कितना गिवन है? 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2. S1 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, 5 into 1, तो 3 by 2 plus 5 by 2, that is 8 by 2 and 4, and which is also equal to T1. तो T1 कितना आ गया? 4 आ गया. S2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 into 2 स्क्वायर बाई 2, 5 into 2 by 2, सिंप्लीफाई करिए, 4 3 सा 12, 12 by 2, 10 by 2, ये कितना? 6, और ये 5, तो 6 plus 5 11. तो T2 कितना हो गया हमारे पास में? ध्यान समझिएगा, ये S2 मिला है, S2 मिला है कितना? 11. तो T2 इज व्हाट? S2 माइनस S1. T2 इज व्हाट? S2 माइनस S1. तो 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, देन यू विल गेट 7. तो 7 क्या होगा? T2. क्यों? क्योंकि S2 माइनस S1 हमारे पास में T2 मिल रहा है. ओके, नाउ जस्ट फाइंड S3. तो 3 into 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 into 3 by 2, इट इज 27 by 2 प्लस 15 by 2, एड दम 42 by 2, इट इज 21. 21 इज व्हाट? 21 S3. तो T3 कितना है? S3 माइनस S2, तो 21 माइनस 11, दिस इज T3, दिस इज 10. तो जस्ट सी, T1 4, T2 7, T3 10, तो AP क्या बन गई? 4 7 10. जस्ट सी द डिफरेंस कितना आ रहा है? A4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया. ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? फाइंड इट्स 25th टर्म, फाइंड इट्स 25th टर्म. तो T25 A प्लस 24D, A इधर 4 आ गया, 24 into 3, इट इज 72, देन 76 is the answer. The 25th term is 76. Now just see. अच्छा क्वेश्चन है. If the sum of first p terms, if the sum of first p terms of an AP is the same as that of its first q terms, if the sum of first p terms, sum of first p terms of an AP is the same as the sum of its q terms, फर्स्ट पी टर्म्स का सम फर्स्ट क्यू टर्म्स के इक्वल है, ठीक है, और पी क्यू के इक्वल नहीं है, देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज 0. द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज 0. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इक्वल है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड? सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स. SP is equal to SQ, SP equals to SQ, we need to find SP plus Q. okay, तो just see, SP equals to SQ given है, SP P by 2 2A plus P minus 1 into D, Q by 2 2A plus Q minus 1 into D. सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, तो डोंट बी वरीड. यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल. नाउ जस्ट सी, P से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2AP. नाउ जस्ट P स्क्वायर माइनस P, D का नहीं कर रहे हैं, ठीक है, D कॉमन ले लेंगे, P स्क्वायर माइनस P इंटू D. नाउ जस्ट सी, 2AQ, Q स्क्वायर माइनस Q D, ठीक, 2AP और 2AQ इधर लाए, 2AP माइनस 2AQ, ठीक है, 2AP माइनस 2AQ, P स्क्वायर माइनस P, D था ना, Q स्क्वायर माइनस Q भी ले आए, तो P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर माइनस Q, DA इज इक्वल टू 0. तो जस्ट सी, 2A कॉमन है ना, P माइनस Q प्लस P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q. ओके, ओपन किया, अब D कॉमन ले लिया, ठीक, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बनाने के लिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर साथ में ले लिया, और माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर P माइनस Q हो जाएगा ये, ठीक है. जस्ट सी, ये तो चल ही रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज P प्लस Q, P माइनस Q माइनस P माइनस Q होल D इक्वल्स टू 0. अब क्या है, P माइनस Q सब में से कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ क्या बचा? 2A, यहाँ पर P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 0. ओके, तो जस्ट सी, चाहे तो हम एक स्टेप और बढ़ा दें इसमें, P माइनस
क्यू प्लस पी माइनस क्यू अगेन कॉमन ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू 0. तो जस्ट सी पी माइनस क्यू कॉमन, तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0. तो जस्ट सी पी माइनस क्यू 2a प्लस पी माइनस क्यू. एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे. पी माइनस क्यू 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पी की कोई इक्वल नहीं है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पी डज नॉट इक्वल टू क्यू. तो पी हमारा की क्यू इक्वल नहीं होगा, तो पी माइनस क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा. तो p माइनस क्यू डज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन. लेकिन ये क्या है? एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा? p प्लस क्यू बाई टू. p प्लस क्यू बाई टू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. ठीक है. अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू तो 0 आ गई ना, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 0. तो p प्लस क्यू बाई टू जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा. मतलब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0. नाउ गॉट इट. तो एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के. तो यही तो पूछ रहा था ना, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0. ओके. द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0. तो वी फाइंड एस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. गॉट इट. ओके. वन मोर क्वेश्चन. सेम है. इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बी m, sum of first m terms be n and the sum of first n terms be m, then show that sum of first m plus n terms is minus m plus n. Sum of first m plus n terms is minus m plus n. तो वही काम है. a फर्स्ट टर्म हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया. sm कितना है? m बाई टू, 2a प्लस m माइनस वन, d इज इक्वल टू n. ठीक है. चेक कर लिए, मल्टीप्लाई करते हैं. तो m 2 को उधर भेज दे रहे हैं 2n. ठीक है. देन 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी इक्वल्स टू 2n. m से मल्टीप्लाई किया ना, 2am m का इसमें हुआ m स्क्वायर, फिर ये m d 2n के इक्वल हो गया. sn कितना है? n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये m के इक्वल गिवन है. n फिर उधर भेज दिया, मतलब 2m हो गया. नाउ जस्ट सी 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n d इक्वल्स टू 2m. नाउ जस्ट सी फर्स्ट से हम सेकंड माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दे रहे हैं. तो 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी 2n, और 2n n स्क्वायर माइनस एन डी 2m ये है. माइनस किया, देखिए 2a कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन, 2a कॉमन लिया m माइनस एन. नाउ जस्ट सी m स्क्वायर माइनस एन, n स्क्वायर माइनस एन, माइनस किया, d कॉमन लिया ना, m स्क्वायर माइनस एन, माइनस कॉमन किया, तो n स्क्वायर और ये प्लस एन. ठीक. 2m माइनस एन. ठीक है. अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2m माइनस एन हो जाएगा, 2m माइनस एन. तो जस्ट सी 2am माइनस एन प्लस m प्लस एन, m माइनस एन माइनस m माइनस एन d माइनस 2m माइनस एन. तो व्हाट टू डू विद इट? 2am माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, सब में कॉमन लेके हटा देते हैं. ठीक है. m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन. तो नाउ जस्ट सी 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 2. किसके इक्वल आ गया? माइनस 2 के. तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू माइनस 2. तो एस एम प्लस एन बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है ये. ठीक है ना. ये किसके इक्वल होता है? एम प्लस एन बाई टू, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी के. तो जस्ट सी एम प्लस एन बाई टू, और ये किसके इक्वल आया था? दिस वॉज इक्वल टू माइनस 2. किसके इक्वल आ रहा था? माइनस 2 के. तो एम प्लस एन बाई टू इंटू माइनस 2 माइनस एम प्लस n. ठीक है. सो दैट इज प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स. क्यों? क्योंकि 2a प्लस m प्लस m माइनस 2 माइनस 2 के इक्वल आ गया. जैसे ही आया एस एम प्लस एन किया, m प्लस एन बाई 2, ये पूरे वैल्यू रखी 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी. इसकी वैल्यू हमारी माइनस 2 के इक्वल है. ठीक है ना. तो m प्लस एन बाई टू इंटू माइनस 2, तो ये कट गया, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस m प्लस एन के इक्वल. ओके. ओके, दैट इज ऑल.